So very good morning to all of you. Today lecture number 4 for the environmental studies. In previous class, we have seen the issues related to the environment and their impact on our uh, ecological system and health of the human beings, animals and plants. So environmental issues, greenhouse effects, such as climate change, global warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accidents. All these things we have seen in lecture number 3, and almost all the things are covered. Global warming and how to reduce the global warming, climate change, and their impact on the earth and different effect on the water bodies, sea level, as well as on plant. Also, we have seen the acid rain due to this contamination in the water, and it evaporate and making cloud, and then cloud is uh, precipitated in another region, and due to this acid rain, the effect on plant and buildings and other structures we have seen in a previous class, as well as the uh, effect of acid rain on health, then ozone layer depletion due to the emission of the carbon dioxide and other harmful gases such as uh, chlorofluorocarbon and methane, etc. Also, we've seen about the uh, causes of this ozone layer depletion. Mostly the chlorofluorocarbon, which is used for the refrigerant and the cooling industry, they are most vulnerable to the ozone layer. Also, we have seen the nuclear accident, uh, which may occur in many parts of the globe due to the nuclear power generation and due to the radioactive element and explosion, etc., that harmful that region. Now today we will, in lecture number 4, mm, myself, Professor Navid Akhtar Mirza, in unit number 2 already we have covered these topics: definition, need for environmental studies, segments of environment, atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. In third lecture, we have seen the environmental issues I discussed now also, and then today we will see the concept of 4R, that is reduce, reuse, recycle, and recover, as well as the public awareness about the environment. So at the end of this lecture number 4, the outcome of lecture is you can able to understand about the concept of 4R and public awareness about environment. This concept of our 4R is nothing but the control measures and the public awareness about the environment. And these concepts are 4R concepts are reduce, reuse, recycle and recover. तो पहले कंसेप्ट पढ़ने से पहले आई विल एक्सप्लेन अबाउट द
why the public awareness is needed. हमको मालूम है हम दिन ब दिन हमारे अर्थ क्रस्ट पर हम पोल्यूशन खुद फैला रहे हैं और हमारे कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से भी हम लोग हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स और डिफरेंट कंटामिनेशन हम लोग ज़मीन पर करते हैं। और ये कंटामिनेशन हम रोक सकते हैं, हमारे ऊपर है, क्योंकि कंटामिनेशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। और इसी के साथ में जो ज़मीन का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे आप रेत ले लें या स्टोन ले लें, स्टोन क्योरिंग होती है, कोल माइनिंग होती है, वुड हम लोग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में और अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। और इसी तरह हमारे जो घर के वेस्ट है, हमारे इंडस्ट्रियल के वेस्ट है, और जो हमारा वेस्ट वाटर है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे हमारे घर का हो या कोई और यूज़ का हो, हम उसको विथआउट ट्रीटमेंट और विथआउट एनी प्रोसेस हम इसी तरह डिस्चार्ज कर देते हैं या फेंक देते हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन सब वेस्ट को अगर हम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करें या इन वेस्ट को हम प्रोसेस करके डंप करें या इन वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ें हम दूसरी चीज़ें बना सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अवेयरनेस पब्लिक को या ह्यूमन बीइंग को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को ही अल्लाह ताला ने उसे सलाहियत दी है कि वो सोचता है, समझता है और उस पर काम करता है। एनिमल्स और दूसरे जो जानदार हैं उनके अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं दी है। इसके लिए हमें इंडिविजुअली वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से सोचना चाहिए और किस तरह हम वेस्ट को रिड्यूस कर सके। ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार ये बोलते रहें कि ये म्यूनसिपलिटी का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये कॉरपोरेशन का काम है, दे आर टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम अस। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम प्लास्टिक के कचरे या कुछ भी जो हमारे कचरे हैं हम किधर भी डंप कर दें या छोड़ दें, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो वी कैन रिड्यूस वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, we can act as a watchdog that inform the government about sources that lead to pollutions and degradation of our environment. So this can only be made possible through a mass public awareness, mass media such as newspaper, radio, television, strongly influence public opinions. तो ऐसी जगह पर हम ये अवेयरनेस की जो बातें हैं, वीडियोस हैं या एडवर्टाइजमेंट हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या शॉर्ट वीडियोस हैं, हम लोगों से शेयर करें। ये सिर्फ पॉलिटिशियन का या एनजीओज़ का काम नहीं है या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ का काम है, ये काम हम सब का है और इसका अवेयरनेस फैलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि लोग कम से कम वेस्ट जनरेट करें और जो वेस्ट हमारे पास जनरेट हो रहा है उसको कोई अदर पर्पस में इस्तेमाल करें, और जो वेस्ट हमारे पास जनरेट हो रहा है उसको कहीं रीयूज़ करें या रिसाइकल करें या उससे कोई अनदर प्रोडक्ट जो हमारे अर्थ को हार्मफुल नहीं हो, जो हमारे इकोसिस्टम को हार्मफुल नहीं हो,
जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं वो रिड्यूस हो। तो ऐसे काम हम कर सकते हैं और ऐसे अवेयरनेस हम पब्लिक में पहुंचा सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हम पर इस पर तवज्जो देना चाहिए। हमारे अतराफ़ में जो लोग हैं जिनको इसके ताल्लुक़ से मालूमात नहीं है, हमको देना चाहिए। हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं अवेयरनेस पहुंचाने के लिए? द एक्टिविटीज़ फॉर अवेयरनेस begin reading newspaper articles and periodicals such as Down to Earth, WWF1 newsletter। सर हाँ सर हाँ बोलिए। अवेयरनेस के वर्डिंग मीनिंग क्या होगा सर? हेलो, प्लीज म्यूट योर। हाँ सर, आई अवेयरनेस विल। का क्या मतलब होगा सर? अवेयरनेस यानी जागृति, अपन लोगों को बताना, इल्म इल्म पहुंचाना इन्वायरमेंट के ताल्लुक से। इन्वायरमेंट में क्या क्या हमको, किसकी वजह से पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसकी जानकारी और इसका इल्म देना, ये क्या कहलाता है? अवेयरनेस, है ना। जो ओके हमको सर, जो ओके। हमको मालूम है, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। जो हमको मालूम है, जो बातें हमको मालूम है, जो हम सीख रहे हैं, ये लोगों तक फैलाना और इसकी जानकारी देना, ये क्या है? लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। चाहे आप कोई आर्टिकल लिखो और न्यूज़पेपर में दो, चाहे आप कोई शॉर्ट स्टोरी बनाओ और लोगों को शेयर करो, आप शॉर्ट वीडियो बनाओ, लोगों को शेयर करो, नुक्कड़ नाटक करो, लोगों को जमा करके उनसे बातें करो हमारी सोसाइटी में। जो एरियाज़ में जिनके होल्ड जाता है पॉलिटिशियन से या कोई भी ऐसे सोशल वर्कर से, उनसे मिलकर काम करो। ये इस तरह हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, जानकारी लोगों के पैदा कर सकते हैं एक्टिविटीज़ अबाउट द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में हम वेस्टेज पैदा करते हैं, पोल्यूशन करते हैं और उसके मीज़र क्या हैं, उसको किस तरह हम रोक सकते हैं, ये जानकारी देना, इसको क्या बोलेंगे हम? अवेयरनेस। Lobby for conserving the resource by taking up the cause of environmental issues during the discussion with the friends and relatives। यानी हम इस ताल्लुक से हमारे दोस्तों से, हमारे घर में लोगों से हम डिस्कशन करें, उस पर बातें करें, इस पर चर्चा करें। Practice and promote issues such as saving paper, saving water, reducing use of plastic, practicing the 4 R's principle of reduce, reuse, recycle and recover, or join a group of study nature such as WWFI and another environmental group available internationally. Join local movement that support activities such as saving trees, planting trees, going on natural treks, recycling of waste। ऐसे जो काम करते हैं, जो सोशल वर्कर है, जो सोसाइटी है, उनके साथ आप मिलके काम कीजिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा कीजिए। Practice and promote good civic sense such as no spitting or tobacco chewing, no throwing garbage on the road। इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट हम लोगों को बताएं कि टोबैको च्यूइंग से कैंसर होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, आपके बॉडी को नुकसान होता है। आप जब उसको स्पिटिंग करते हो तो लोगों को नुकसान होता है, उसकी बदबू तेज लोगों को, स्मोकिंग करने से पब्लिक प्लेसेस पर, वहाँ पर लोगों को उससे हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। और ये सब अवेयरनेस हमको पैदा करना चाहिए, लोगों में बताना चाहिए उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है और उसको छोड़ने से हमारे इन्वायरमेंट को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टेक पार्ट इन डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द on the day of World Environment Day, Wildlife Week, etc. So you can put your effort, you can organize program in your college also or in your society also. Now we'll see the what is the concept of 4R. 4R means reduce, reuse, recycle and recover of
the things. Reuse means, reduce means ऐसी चीज़ें जिससे हम पोल्यूशन पैदा करते हैं उसका इस्तेमाल कम करना, डेट इज रीयूज। रीयूज कोई हमारा बाय प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है, हमारे कुछ प्रोडक्शन से, उसको रीयूज करना। रिसाइकल यानी जैसे कि हमारा वेस्ट वाटर है, हम उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स है, कॉन्टामिनेंट है, अगर रिमूव करके उसको रिसाइकल करके हम लोग यूज़ करें हमारे जो फ्लश टैंक है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रिसाइकल। एंड रिकवर मीन्स यानी हम वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो इंसानों को और हमारे पर्पस में डे एंड डे यूज़ में जो हमको लगती है, ऐसी चीज़ें हम बनाएं वेस्ट मटेरियल से, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकवर। एंड दीज आर द 4R कंसेप्ट। पहला तो क्या है कि हम रिड्यूस करें। रिडक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। If you reduce at source, there is a smaller chance of waste generation and the pressure on our already stressed natural resources. जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया कि 1 टन सीमेंट बनाने से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो अगर हम सीमेंट की बजाय कोई दूसरा मटेरियल जिसके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हो, बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो, हम हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट का यूज़ रिड्यूस करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन इन यूज़ ऑफ सच मटेरियल, देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट आर लार्ज। तो ऐसे मटेरियल का यूज़ हम कम कर दें जिसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादा है। तो इफ़ वी अवॉइड मेकिंग गार्बेज, we need not worry about disposing of waste or recycling it later. Changing the habit of shopping, working, playing and can reduce our waste. There are tons of ways to reduce waste, saving some time and money and being good to the earth at the same time. तो जितना वेस्ट जनरेशन हम कम करेंगे, यानी हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को, जो पोल्यूशन होता है उसको हम कम करेंगे। Also by reducing and reusing, consumers and industry can save natural resources and reduce waste management cost. तो पहला जो हम लोग है कि इस्तेमाल, जो हम ऐसी चीज़ें कम करें जिनकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और उसका इम्पेक्ट होता है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है कि जो वेस्ट है हम उसको रीयूज़ करें। Use the next best option as the products is used in the current form without any energy expended to convert into a new item. तो रीयूज का मतलब ये है कि जो वेस्ट है उसको एज इट इज़ हम इस्तेमाल करें, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बिजली बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, और वो बिजली बनाने के प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट है हमको फ्लाई ऐश मिलता है, और फ्लाई ऐश को हम सीमेंट से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आ गई, एक तो वेस्ट मटेरियल हम रीयूज कर रहे हैं और सीमेंट रिड्यूस कर रहे हैं, यानी दोनों तरीके से यहाँ पर इन्वायरमेंट पर हम इम्पेक्ट कम कर रहे हैं, पोल्यूशन को कम कर रहे हैं या वेस्ट जनरेशन को कम कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीयूज, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज रीयूज when we are using that material, that waste material for different purpose. The example of conventional reuse is refillable milk bottles, retreading of the tires, and the use of returnable reusable plastic boxes, शिपिंग कंटेनर एट्सेट्रा। यानी जो हम पैकिंग इंडस्ट्री में जो हम जूस है, मिल्क है, प्लास्टिक के बोतल में पानी है, ये सब हम लोग मार्केट में अवेलेबल है,
हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर का सामान और प्लास्टिक को हम लोग डंप कर देते हैं। उसकी बजाय अगर हम उस बॉटल को हम रीयूज़ करें तो हम इन्वायरमेंट में लेस कंटामिनेशन या पोल्यूशन जनरेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे उसको। Scientific research has shown that reusing a product can reduce carbon dioxide emission and carbon footprint by more than 50% relative to the complete product life cycle. अगर हम रीयूज़ करते हैं हमारे वेस्टेज को कुछ अदर पर्पस के लिए तो हम 50% फुटप्रिंट कार्बन के कम कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी गैस है जो हमारे ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज और मेनी रीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उसका रिडक्शन कर सकते हैं अगर हम वेस्ट को रीयूज़ करें। इसी तरह तीसरा यानी जो कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे रीयूज़ करने के, रीयूज़ हेल्प सेव टाइम, मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। तो डेफिनेटली कोई भी मटेरियल हमको बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई बाय प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करते हैं हम हमारे पर्पस के लिए, तो हम वक्त के साथ पैसा और एनर्जी और रिसोर्सेस भी बचाते हैं रीयूज़ करने से। रीयूज़ रिड्यूस डिस्पोजल नीड्स एंड कॉस्ट, है ना। हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उसको उठाते हैं। अगर हम कम वेस्ट करें और वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करें तो हमारा डिस्पोजल कॉस्ट बचेगा। इसी तरह रिफर्बिशमेंट कैन ब्रिंग सोफिस्टिकेटेड सस्टेनेबल वेल पेड जॉब्स टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। यानी कोई मटेरियल को थोड़ा सा रिफर्बिशमेंट करके यूज़ करना, जैसे कि रीट्रेडिंग है ऑफ टायर्स है, पुराने टायर्स के ऊपर का लेयर निकाल के उसको वापस से अच्छे से यूज़ करना, दैट इज़ रिफर्बिशमेंट। इसी तरह मेनी थिंग्स में हम कर सकते हैं। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स आर ऑफन चीपर देन मेनी सिंगल यूज प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्ट जो हम घरों से या दूसरी जगह से हम कलेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से, देयर कॉस्ट इज़ चीपर, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कम रहेगी। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, इसमें शॉर्टिंग, प्रिपेयरिंग और कलेक्टिंग में हमारा हो सकता है कि कॉस्ट बढ़े, है ना। रीयूज ऑफन रिक्वायर्स क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट बढ़ सकता है। और इन जनरल यूजेबल प्रोडक्ट नीड टू मोर ड्यूरेबल दैन सिंगल यूज। तो ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग रीयूजेबल मटेरियल है वो हमको कम वक्त तक ड्यूरेबल रहे बनिस्बत के जो नया मटेरियल। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन देयर आर मेनी एडवांटेजेस। और ये कुछ टेक्निक्स हैं कि हम रीयूज द सेंटर एंड वर्चुअल एक्सचेंज, डिपॉजिट द प्रोग्राम, क्लोज लूप प्रोग्राम, रिफिलिंग प्रोग्राम। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है रीयूज़ के, कि हम रीयूज सेंटर बनाएं हमारे एरिया में, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो दूसरे को काम में आता है और उनका जो वेस्ट मटेरियल वो हमको काम में आता है, इसको हम लोग वर्चुअल एक्सचेंज मिलते हैं। डिपॉजिट प्रोग्राम, जैसे हमारे बहुत से जगह पर औरंगाबाद में और दूसरी जगह पर और बहुत सी जगह पर अगर आप खाना आपका वेस्ट होता है तो आप ऐसी जगह पर अगर डोनेट करते हैं तो वैसे दूसरे लोगों पर वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसको डिपॉजिट प्रोग्राम आप बोल सकते हैं। या कहीं पर हम सिस्टम बनाए कि आपका वेस्ट आप इस तरह यहाँ पर डिपॉजिट करें, हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। और डिफरेंट डिपॉजिट सिस्टम बनाएं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको अलग रखें, प्लास्टिक को अलग रखें। ऐसे ऐसे हम लोग अलग अलग सेंटर बना सकते हैं। इसी तरह रिफिलिंग प्रोग्राम, जैसे कि वाटर बॉटल हम खरीदते हैं तो अगर हम मिनरल वाटर रिफिलिंग सिस्टम बनाएं कि भाई हम पैसा डालें और वहाँ से वाटर हमारा मिनरल वाटर मिले, उसी बोतल में हम भरें, दैट इज़। और दूसरे पर्पस के लिए हम रिफिल प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे ऑयल हम घरों में यूज़ करते हैं वो पैकेट में आता है, उसकी बजाय हम
कैन यूज़ करो और उसी में रिफ़िल करके हम अगर ऑयल हम परचेस करें एंड डिफरेंट थिंग। इसी तरह प्रिंटिंग कागज और टोनर को यूज़ करो, फेंकने के बजाय, डंपिंग करने के बजाय बार बार, उसमें आपका कॉस्ट भी कम पड़ता है और इट विल गिव यूज सेम रिजल्ट एंड रीपर्पजिंग कैन बी डन। तो इस तरह ये दो हमारे इम्पोर्टेंट रिड्यूस एंड रीयूज हम लोग ने देखा। इसी तरह रिसाइकल, recycling is the last option as although it converts a waste into resources, but it uses energy to transfer the resources into a new usable product, है ना। Recycling is breaking down of an atom into raw material which are then reused to make new potentially useful material। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा ग्लास है, पेपर है, सम मेटल है, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हम इसका रिसाइकलिंग करते हैं। अगर मेटल में हम देखे जाए तो हमारे घरों से या हमारे बिल्डिंग से जो छोटे छोटे वेस्ट आयरन के निकलते हैं या स्टील के निकलते हैं, हम उसको वापस रीसेल करते हैं, वापस स्टील प्लांट में जाता है, उसको पिघला के वापस से हम स्टील के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया रिसाइकल। इसी तरह प्लास्टिक से हम एग्रीगेट बनाते हैं, प्लास्टिक से हम गिट्टी बनाते हैं और वो गिट्टी से हम नरी बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ऐसे जो वेस्ट पेपर है हमारे, उसको हम लोग रिसाइकल करके वापस से पेपर बनाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर कम अंडर द रिसाइकलिंग, है ना। इसी तरह न्यूज़पेपर हमारे जो जिसके वेस्ट निकलते हैं उसको हम रिसाइकल करते हैं एंड देन वी आर मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स फ्रॉम दिस वेस्ट। Recycling of material may produce a fresh supply of the same material. For example, use of office paper would be converted in new office paper or used foam polystyrene into new polystyrene। तो इस तरह हम रिसाइकलिंग से, sometimes recycling is difficult or too expensive। तो recycling of many products or material may involve their use in producing different materials, paper, board, in steel। Another form of recycling is the salvage of certain material from complex product, either due to their intrinsic value, the lead from car battery, you can gold from computer component, or due to their hazards। So we can recycle and reuse that। इसी तरह recycling is the key of modern waste reduction and is third component of the your 4R concept। Some advantages of recycling: recycling reduces the consumption of fresh raw material, it reduces the energy uses, it reduces the air pollution from incinerations, it also reduces water pollution by reducing the need of conventional waste disposal। तो रिसाइकलिंग करने से हम ये सब एडवांटेज हम हासिल कर सकते हैं। इट लोअर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन एज कम्पेयर टू द वर्जिन प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि सीमेंट का यूज़ हम कम करें, उसकी जगह बाय प्रोडक्ट वर्जिन फ्लाई ऐश यूज़ करें, उससे हम रिसाइकल मटेरियल बनाएं। प्लास्टिक से हम लोग एग्रीगेट, प्लास्टिक एग्रीगेट या दूसरे पर्पस के लिए हम रिसाइकल करें यूज़ के लिए। तो that can be done, that product can be usable। इसी तरह इसमें डिसएडवांटेज है, समटाइम्स द रिसाइकलिंग कॉस्ट इज large than the new virgin production। Then the last concept of your 4R is recovery। The recover provides an ecologically sound and environment-friendly approach to minimizing and managing waste and waste stream। Recover is to convert waste into resources such as electricity, heat, compost, and fuel through thermal and biological means। Resource recovery occurs after reduce, reuse, and recycle have been attempted।
तो आप देखेंगे रिकवरी की वजह से हमारे ये जो साइकिल रिकवर साइकिल मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन इज़ कि हम ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ ही प्रिवेंट करें जो हमको हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो ये 4R कंसेप्ट आप देखेंगे कि पिरामिड में बताया गया है कि हम मिनिमाइज करें, प्रिवेंट करें यूज़ को, और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको रीयूज़ भी करें वो मटेरियल को, और हो सके तो उसको मटेरियल को रिसाइकल करें। रीयूज़ करना यानी विथआउट एनर्जी हम उसको इस्तेमाल करें, कोई एनर्जी ना लगे उसको कन्वर्ट करने में यूजेबल मटेरियल में। लेकिन अगर एनर्जी लगती है तो हम उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। और अगर हम वेस्ट से कोई एनर्जी डेवलप करते हैं तो दैट इज एनर्जी रिकवरी, और दैट इज नथिंग बट यू कैन से रिकवर, यानी कोई वेस्ट से कुछ ऐसा मटेरियल बनाना दैट इज यूजेबल है। जैसे कि प्लास्टिक से प्लास्टिक ब्लॉक्स बना रहे हैं जो कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, जो वेस्ट रबर है, वेस्ट सिलिकॉन है, उससे ब्लॉक्स बना रहे हैं, जो कंक्रीट के यानी जो बिल्डिंग्स हमारे जिनकी लाइफ पूरी हो जाती है उनके ब्रेकिंग से जो मटेरियल यूज इस हमको डिस्पोजल मटेरियल मिलता है उसको हम रिकवर करके कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं या कंक्रीट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दैट इज़ आल्सो रिकवरी। तो इस तरह हम ये 4R कंसेप्ट हम हमारे इन्वायरमेंट के लिए दे सकते हैं। तो रिकवरी इज व्हेन मोस्ट ऑफ द मटेरियल थ्रोन एज ए गार्बेज इज यूज्ड एंड प्रोसेस इन अ वेज अदर देन बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय हम उसका इस्तेमाल करें। देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लेट ज्वाइन करते हैं लेक्चर, दे शुड नॉट डू दैट। आपकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास गूगल अटेंडेंस में आ जाती है, आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कब छोड़ रहे हो लेक्चर। तो डोंट डू दैट, ज्वाइन ऑन टाइम एंड लेफ्ट ऑन टाइम। So recovery means turning waste into a fuel for a manufacturing process after removing of our individual components that may be used again. जैसे कि आपने सुना होगा कि प्लास्टिक से हम डीजल बना रहे हैं, है ना, जो कोई व्हीकल में एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ हो, तो दैट इज़ नथिंग बट रिकवरी। इसी तरह कंक्रीट प्रोडक्ट का मैंने बताया कि हम बिल्डिंग के जो वेस्ट निकलते हैं जिनकी लाइफ हो गई है उसके डिस्पोजल की बजाय वो मटेरियल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट रिकवरी। तो दिस इज़ द 4R concept today we all learned, and in next lecture we will start the unit number 2 of your environmental study. So today we learn about the 4R concept, that is nothing but control measures and the public awareness about the environment. So we will stop here. Thank you. If any doubt you can ask. तो इन्वायरमेंट को बचाना ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है या गवर्नमेंट बॉडीज़ का काम नहीं है या NGOs का काम नहीं है, ये हम की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट पोल्यूशन किस तरह होता है, वेस्ट जनरेशन किस तरह होता है और उसके मीज़र्स क्या हैं, हम किस तरह पोल्यूशन इन्वायरमेंट में जो होता है उसको बचा सकते हैं। तो आप सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि लेक्चर पर टाइम से ज्वाइन हों।